Good morning, student. Today's the subject business study, chapter 2, forms of business organization. Today's topic, cooperative society. First question, meaning of cooperative society. Then second, definition of cooperative society. Then next, formation of cooperative society. And next, advantage of cooperative organization or society. So the first topic, meaning and definition of cooperative society. Actually, the word cooperative has been derived from conjunction of two words, cooperative, where co means to join, and operative, which means to work. Okay, cooperative society, actually the word cooperative has been derived from conjunction of two words, cooperative, where co means to join, and operative, which means to work. Cooperative society therefore means some person working together for some goal. Co is equal to join, operative is equal to work. So cooperative society is a voluntary association of people, the aim of which is not just to earn profit but to serve its members. Cooperative is an association of person whereby people of ordinary means unit willingly to protect their economic and social interest. Actually, the main principle of cooperative is that each one work for all and all work for each one. Okay, the main principle of cooperative is that each one work for all and all work for each one. Definition H. Calvert. Cooperation is a form of organization wherein person voluntarily associated together as human beings on the basis of equality from the promotion of the economic interest of themselves. एक्चुअल में कोऑपरेटिव दो वर्ड से मिलकर बना है, को प्लस ऑपरेटिव. यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति जो मध्यम वर्ग के होते हैं उनके द्वारा मिलजुल कर स्वयं की सहायता के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए इस प्रकार की जो संस्था है वो स्थापित की जाती है. फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. एक्चुअली ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. Some state government has formed their own legislation of promote the cooperative movement at a rapid speed. Following requirements are to be fulfilled step by step the process formation of a cooperative society. फर्स्ट है मिनिमम मेंबरशिप. एक्चुअली देयर शुड बी एट लिस्ट 10 एडल्ट मेंबर विलिंग टू फ्रॉम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कम से कम 10 वयस्क लोग जो हैं वो मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करते हैं. सबमिशन ऑफ बाय लॉ. डिटेल्स बाय लॉ इंक्लूडिंग all the rules and regulation to be allowed by the members in the course of management are be submitted along with the application of registration. Then next, deposit minimum capital amount in the bank. मिनिमम कैपिटल अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है. देन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. An application for registration must contain details of the following: name and address of the society,
एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलर ऑफ शेयर कैपिटल। द एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड एज अबोव मस्ट बी डली साइन बाई लिस्ट 10 मेंबर्स का कम से कम उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फीस। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एक्सपेंड फ्रॉम पेइंग रजिस्ट्रेशन फीस। देन नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी आफ्टर satisfying from the documents of registered certificate and sent much certified with the certified copy by law on the society। मतलब मैं ये बता रही हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना के लिए मिनिमम मेंबरशिप चाहिए 10 वयस्क व्यक्ति। जो भी नियम कानून बने हैं वो सबमिशन वहाँ पे बनाकर सबमिट करने पड़ते हैं। डिपॉजिट करना पड़ता है कैपिटल बैंक में जितना कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जिसमें फर्म और सोसाइटी का नाम, इसके अलावा उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, पर्टिकुलर जो पर्सन है उनके कितने शेयर्स होंगे, ये सारी बातें वहाँ पे रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं। देन नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी आफ्टर, अगर वहाँ का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने मांगा है वो यदि आप कंप्लीट कर देते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आफ्टर सेटिस्फाइंग फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स द रजिस्टर्ड इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम रजिस्टर में एंटर कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। उसके बाद इलेक्शन ऑफ ऑफिस बेयरर्स आफ्टर द रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है जनरल मीटिंग बुलाई जाती है और इस कॉल्ड वेयर ऑफिस बेयरर आर इलेक्टेड। उसके बाद जो है चेयरमैनशिप वगैरह का जो भी है संचालकों की आपस में इलेक्शंस होते हैं और उसके अनुसार जो है कोई चेयरमैन, कोई वाइस चेयरमैन, कोई सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह जो है नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स आप दे सकते हैं और कमेंसमेंट आफ्टर द अबोव फॉर्मेलिटी सोसाइटी कैन स्टार्टेड द वर्क। तो ये हमने पढ़ा आज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और साथ ही साथ ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपका, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हम कैसे करा सकते हैं। थैंक यू।